Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the features of the general will. Features क्या थे general will के? First one was the unity. General will is rational. Just a minute. See, general will क्या है? It is a rational. It is not self-contradictory, right? जनरल विल क्या देता है? इट गिव्स द सेंस ऑफ यूनिटी. देन परमानेंट. एज जनरल विल इज बेस्ड ऑन रीजन, विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड थॉट अबाउट गुड ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट टू डू अवे विद द टाइम बट इज़ परमानेंट, राइट. अभी जनरल विल क्या है? परमानेंट है. ये टाइम बदला, कुछ भी हुआ तो बदलती है क्या? नहीं. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट विल. It is will which takes into consideration not only the political and social aspect but अपनी moral condition का भी ये ध्यान रखती है. Then unalienable. Rousseau's Soviet is general will and not any human will. यहाँ क्या बोल रहे हैं? The Soviet and general will ये दोनों inseparable है and hence inalienable है. For Rousseau, alignment general will is just killing it. Then unrepresentative. According to Rousseau, people have no right to deliberate their authority or representative themselves by anybody else. He believes in the theory of direct democracy through general will. And rational. Rousseau based his theory of general will on rationalism and not on force. For him, will is not force but a very basic of sustainable state. Then disintegrated. Rousseau's will is disintegrated because it is not concerned with individual, but वो पूरे कम्युनिटी को ध्यान में लेता है, पूरे कम्युनिटी के हिसाब से चलता है. So general will is not interested in any section of the society, but it takes into consideration the whole of society. Then unenforceable. See, अभी क्या है? जनरल विल इज नॉट एक्सक्लूसिव सिंस जनरल विल इज impersonal. It cannot be loaded with the responsibility of enforcing law. General will cannot be executive as well as legislative body. Then अपन ने कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे थे. फर्स्ट वन इज क्या है? कंफ्यूज्ड है. लाइक जनरल विल और एक्चुअल विल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या है, क्या नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है, राइट. और फिर वो अरिथमेटिक टच देने की ट्राई कर रहे हैं जनरल विल रियल विल को, बट एक्चुअली अरिथमेटिक टच देना पॉसिबल ही नहीं है. नो डिफरेंस इन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल. यहाँ पे क्या है? उन्होंने डिस्टिंग्विश करने की ट्राई की, बट एक्चुअल में क्या है? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट डिफरेंस लाना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. देन यूनानिमस एंड नॉट मेजोरिटी विल. सी, रोसेलस कंसेप्ट ऑफ जनरल विल क्या है? इज मोर और लेस अ यूनानिमस विल and cannot be majority will. Ununanimous will and decisions are possible only in the animal and not in the human society. Wills cannot be divided. Rousseau has divided the will of an individual into integral part, namely essential and non-essential will. But actually में ये essential non-essential will में difference करना is highly impossible. ये actual में possible है ही नहीं. Then moving towards the fifth point, no reconciliation of general will and justice. See, ये general will क्या है? थोड़ा सा justice के जैसा है, but क्या है? ये लोगों के मन में बहुत ज़्यादा confusion create कर रही है. General will cannot be reconciled with freedom. See, according to Rousseau, whosoever refuses to obey the general will be made to obey it and will be set free. अब ऐसा बोल दिया कि वह तू तेरा देख, तो क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? उसको ये ओबे करना ही पड़ेगा. ये विल एक्सेप्ट जनरल विल एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी. देन व्हाट इफ नॉट मेजॉरिटी विल. रोसेलू हैज़ reduced the theory of general will to nothingness when he says that general will is not majority will. अगर ये majority will नहीं है तो फिर क्या है? Then moving towards the 8th point, distinction
in general will and individual good. Rousseau believed that general will is something else than the individual good. See, Rousseau क्या बोल रहा है, ये जनरल विल जो है, राइट, ये जनरल विल है, ये समथिंग एल्स है देन द इंडिविजुअल गुड, इंडिविजुअल गुड से अलग है. दिस मीन्स दैट देयर इज समथिंग अबाउट द इंडिविजुअल विच मे बी कॉल्ड द स्टेट. सी, अभी इंडिविजुअल के ऊपर भी कुछ है जिसको अपन स्टेट बोल रहे हैं. रोसलू हैज़ थस ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट. रोसलू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में ही इज ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश, राइट, डिस्टिंग्विश करने की बहुत ट्राई कर रहे हैं वो. In actual practice, however, the state consists of individuals and their interests are inseparable. See, in actual practice, लेकिन actual में देखा जाए तो क्या है, however, ये जो state है, ये the state consists of individual. ये state में individuals हैं और उनका interest क्या है, inseparable है. Like जहाँ पे आप रहते हो वो state का कुछ ना कुछ तो अच्छा बुरा ज़रूर देखोगे. कि आप state के भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, कुछ भी भलाई नहीं देखोगे, ऐसे तो होता नहीं है कभी. जनरल विल इम्पॉसिबल इन नेशनल स्टेट, नेशन स्टेट. सी, द नोशन ऑफ जनरल विल आर expounded by Rousseau may be some extent be possible in case where the community is small and the individual have personal contact with each other. See, the notion of general will are as expounded by Rousseau. See, अब ये जो नोशन ऑफ जनरल विल क्या है, जो रोसेलू ने बोला है, कुछ एक्सटेंट तक पॉसिबल है, राइट. जहाँ पे कम्युनिटी छोटी है, जहाँ पे छोटी कम्युनिटी है वहाँ पे आप सब लोगों के मुताबिक, सबकी इच्छा के अनुसार सब काम कर सकते हो. बट जहाँ पे सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी है वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आप ये जनरल विल थ्योरी यूज़ कर पाओगे क्या, नहीं. इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल टू यूज़ द थ्योरी ऑफ जनरल विल ओवर देयर. सही बात है ना. It is more or less impossible to ascertain general will on the line suggested by Rousseau. See, ये थोड़ा या ज़्यादा एक इम्पॉसिबल है जो रोसेलू बोल रहा है, उस हिसाब से जनरल विल यूज़ करें, वो इम्पॉसिबल है. डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन दिस स्टेट. रोसेलू बिलीव्ड दैट इन जनरल विल देयर शुड ओनली बी डायरेक्ट एंड नॉट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. सी, रोसेलू बिलीव्ड दैट. अब रोसेलू क्या बिलीव करता है, ये जनरल विल है ना, उसमें देयर शुड बी डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, नॉट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. दिस अगेन इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल इन मॉडर्न नेशन स्टेट. से ये पॉसिबल नहीं है. अगर अपन मॉडर्न नेशन स्टेट की बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. The system of direct representation can only be practicable in small state. See, the system of direct representation, जो system है direct representation का, हाँ, ये क्या है, this can only be practicable in small state. ये सिर्फ small state में possible है. No nation state in the world has found it possible to adopt direct democracy as a method for realizing the will of the people. See, no nation state इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज अ मेथड फॉर रियलाइजिंग द विल ऑफ द पीपल यूज़ कर सको. हेंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस थ्योरी इज बाउंड टू कोलैप्स, पर्टिकुलरली इन बिगर स्टेट. से एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, दिस थ्योरी इज बाउंड टू कोलैप्स पर्टिकुलरली इन बिगर स्टेट. ये थ्योरी कुछ काम की नहीं. जहाँ पे बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे ये थ्योरी कुछ भी काम की नहीं. ये थ्योरी वहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकती. देन इम्प्रैक्टिकल ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स. द कंसेप्शन ऑफ जनरल विल इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स. सी, द कंसेप्शन ऑफ जनरल विल. अब ये जो जनरल विल का कंसेप्ट है ये क्या है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑन ह्यूमन ग्राउंड. लाइक अगर आप ह्यूमन नेचर के इसमें अगर आप अप्लाई करो जनरल विल तो ये क्या है, ये कंसेप्ट पॉसिबल ही नहीं है.
In normal times, men are selfish and consider their own interest above everything else. See, in normal life में क्या है, आदमी बहुत सेल्फिश है. वो पहले सिर्फ खुद का देखेगा, खुद का सोचेगा, और फिर कुछ होना रहा अच्छा, कुछ करना रहा अच्छा, तो दूसरे का सोचेगा, राइट. तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो सिर्फ खुद का ही सोचता है. अपन भी वही करते हैं, आज अपन भी वही करते हैं ना. कुछ भी हुआ तो अपन पहले सिर्फ खुद का ही सोचते हैं, खुद का ही देखते हैं. उसके बाद अपन किसी और का सोचते हैं या किसी और का देखते हैं. इट इज़ ओनली इन नेशनल क्राइसिस एंड ग्रेव इमरजेंसी दैट वी थिंक ऑफ कॉमन गुड, राइट. ठीक है, जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जब सब पे मुसीबत आती है, तब अपन दूसरों का सोचते हैं, राइट. नहीं तो इससे पहले क्या करते हैं, अपन पहले सिर्फ खुद का ही सोचते हैं ना, फिर बाद में दूसरों का सोचते हैं. To think of men giving up their selfishness ends for collective ends is something against human nature. See, to think of men, अभी ऐसे लोगों के बारे में सोचने का जो अपना सेल्फिश एंड, जो अपना सिर्फ खुद का सोचते हैं और दूसरों का नहीं सोचते हैं, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा ना. लाइक अभी आप सबको बोलो कि अरे तू पहले खुद का नहीं सोचेगा, तू पहले पूरे सोसाइटी का सोचेगा, सबका भला सोचेगा, उसके बाद तू खुद का सोचेगा, तो ये क्या है, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाता है ना. ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, कौन ये एक्सेप्ट करेगा. इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मोल्ड ह्यूमन नेचर विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट इम्पॉसिबल. सी, ये एक अटेम्प्ट है, आप ह्यूमन नेचर को होल्ड करो. हाँ, आप ये ह्यूमन नेचर बदलने की ट्राई कर रहे हो, और ये ह्यूमन नेचर बदलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बराबर है ना, ये इम्पॉसिबल है ना ह्यूमन नेचर बदलना. आज मैं आपका नेचर बदल सकती हूँ क्या, नहीं बदल सकती आज मैं आपका नेचर. आज आपका नेचर मेरे लिए बदलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है. क्योंकि आपका नेचर मैं मेरे हिसाब से नहीं बदल सकती ना. ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है किसी के लिए भी. तो जो इंसान जैसा है ना, उसको वैसा ही रहना पसंद करते हैं हम लोग. अगर मैं बोलूँ कि नहीं बाबा आप ऐसे मत बिहेव करो, आप ऐसे बिहेव करो, तो क्या है, वैसे एक्चुअल में ये पॉसिबल होता नहीं है. कोई दूसरों के हिसाब से नहीं बिहेव करता, सब अपना मर्जी का मालिक रहता है यहाँ पे. अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलूँ कि नहीं आप ये गलत बिहेव कर रहे हो, आप ऐसे बिहेव करो, तो क्या है, आप क्या बोलोगे, कुछ भी बोलती है मैडम, कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं आपका. ऐसे ही हो जाता है ना, एक स्टेज के बाद वो ऐसे ही होगा. सो आज ह्यूमन नेचर बदलने की बात ना ही करें वो बेटर है. तो रोसेलू क्या कर रहा है यहाँ पे, ह्यूमन नेचर बदलने की ट्राई कर रहा है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल फेलियर. Rosselló has also failed to guide the community as to how it can be applied in actual practice and also to achieve it. See, रोसेलू ने ना यहाँ पे लोगों को बताना भूल गया कि लाइक एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं ये सब, एक्चुअली ये सब कैसे काम करता है, राइट. उसने सारा रील तो बना दिया, सब कुछ कर भी रहा है, बट एक्चुअल में कैसा क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये करना फ़र्क है. सी, अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह लेते हैं. अगर साइंस की टीचर्स ने सारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही बता दिए आपको, और आपको कुछ भी करने नहीं दिया, तो कैसा होगा आपका, कुछ हो पाएगा अच्छे से आपका, नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे. जब एग्जामिनर आएगा और जब आपको एक्चुअल करने का टाइम आएगा, तब आप कर पाओगे क्या एक्चुअली अच्छे से, नहीं कर पाओगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अगेंस्ट social contract theory. Rosselló's theory of general will is against the social contract theory. See, रोसेलो की जो theory है, it is against the social contract theory. According to C.E.M. Joad, it seems to follow that a strict adherence to the doctrine of general will would in practice entail frequency revolt against modern गवर्नमेंट. से अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू C.E.M. जॉर्ड, वो क्या बोल रहे हैं, अगर इट सीम्स टू फॉलो दैट, अगर आप ऐसा फॉलो करना है तो देयर शुड बी स्ट्रिक्टली चलना चाहिए. आप जनरल विल प्रैक्टिस में एकदम स्ट्रिक्टली लाना चाहिए,
उसको अगर स्ट्रिक्टली लाओगे तो क्या है, गवर्नमेंट के बहुत लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे. Vapor says, for if the general will is supreme, the social contract is unnecessary and meaningless. See, for if अगर जनरल विल सुप्रीम है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये अननेसेसरी है और मीनिंगलेस है. मतलब इन्होंने एक को इम्पोर्टेंस दो बोल रहा है, या तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दो या तो जनरल विल को दो. अगर आप जनरल विल को सुपीरियर मान रहे हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये अननेसेसरी है, ये मीनिंगलेस है, उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे. And if the social contract is necessary and significant, the general will cannot be supreme. See, अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नेसेसरी दे रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो फिर ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई मोल ही नहीं है ना. The general will cannot be supreme. Where okay. Colhan has said, theoretically, the sovereignty of the general will represent an attempt to justify philosophically the law. See, Colhan has stated. Colhan क्या बोल रहा है, अगर theoretically जाओगे तो sovereignty of the general will, ये जो sovereignty of general will क्या है, it will represent and justify philosophically the law. ये general will क्या है, it is an attempt to justify philosophically the law. Its effect on liberty in the state will depend on the way in which general will principle is elaborated. Collise. See, its effect on liberty in the state will depend on the way. अभी उसका जो इफेक्ट है लिबर्टी इन द स्टेट, ये किस पर डिपेंड रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द वे इन विच द जनरल विल प्रिंसिपल इज elaborated. Collise. The freedom which is realized in the general will, we are told, is the freedom of state as a whole. See, the freedom, अभी the freedom which is realized in the general will, जो freedom की अपन बात कर रहे हैं, जो अपने को realize होता है general will में, we are told the freedom of state as a whole, उसको अपन state freedom of state बोलते हैं. But states exist to secure individual freedom for its member. But state क्या करता है, state यहाँ पे individual सिक्योर करता है इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर इट्स मेंबर. अ फ्री स्टेट में बी tyrannical, a despot may allow his subject every freedom. See, a free state may be tyrannical, a despot may allow the subject every freedom. For guarantee is there that the state in freeing itself will not enslave its member. क्या गारंटी है कि बाबा जो स्टेट है वो अपने मेंबर को स्लेव्स बना के नहीं रखेगी, हर मेंबर को फ्रीली काम करने देगी, इस बात की क्या गारंटी आपके पास, कोई गारंटी नहीं. द अबाउ क्राइटिज्म डज नॉट मीन दैट रोसेलस कंसेप्ट ऑफ जनरल विल हैज़ नो वर्थ एट ऑल. सी, अगर अपन डज नॉट मीन, अभी अब ऊपर के सारे अपन ने ड्रॉबैक्स देखे, इसका मतलब ये नहीं है ना जनरल विल का कोई वर्थ नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ ना कुछ तो खाली अपन ने क्राइटिज्म देखा तो क्या है, थ्योरी बहुत बुरी है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, उसके कुछ अच्छे फीचर्स भी होंगे, कुछ अच्छे काम भी उसमें होंगे. अभी अच्छी बातें भी तो होगी, अब अच्छी बातें क्या होगी ये अपन देखते हैं. विल नॉट फोर्स इज द बेसिक ऑफ स्टेट. द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द थ्योरी इज दैट इट प्रीच दैट विल नॉट फोर्स इज द बेसिक ऑफ द स्टेट. सी, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द थ्योरी, सी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्या है, ये विल नॉट फोर्स इज बेस्ड ऑन द स्टेट, ये फोर्सफुली नहीं है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है. इट हैज़ मेड द कम्युनिटी रियलाइज द वर्थ ऑफ ह्यूमन कोऑपरेशन. सी, ये क्या है, इसकी वजह से क्या है, कम्युनिटी को पता चल गया अगर अपन सारे लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो अपन पक्का कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा. सो they have made the community realize the worth of human cooperation. Then basic of democracy. The theory of general will is the basic of true democracy in the true sense. See, अब जो theory of general will है, it is based on a true democracy in the true sense. ये किस पे है, it is based on the democracy. पूरा डेमोक्रेसी यूज़ किया है यहाँ पे, उन्होंने पूरा डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दिया है. द कंसेप्ट ऑफ जनरल गुड्स.
The theory advances the conception of general good and puts social interest before individual interest, which aims at creating an ideal state with ideal citizen. See, the theory advances the conception of general good. अब थ्योरी में क्या देख रहे हैं अपन, जनरल गुड के बारे में देख रहे हैं, और यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान पे दिया है, लाइक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. इंडिविजुअल से पहले अपन ने सोशल इंटरेस्ट को ध्यान दिया है, और इससे क्या हो गया, ताकि वी कैन हैव एन आइडियल स्टेट विद आइडियल सिटीजन्स. बराबर है. अगर अपन सोसाइटी को इंटरेस्ट देंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर अगर अपन सोसाइटी को इंटरेस्ट देंगे, तो क्या है, वी कैन क्रिएट एन आइडियल स्टेट, राइट, विथ आइडियल सिटीजन. लाइक यहाँ पे सिटीजन भी एक आइडियल बन के रहेंगे और स्टेट भी अपना अच्छा बन के रहेगा, अगर अपन सबका इंटरेस्ट देखेंगे तो. देन कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ स्टेट. द थ्योरी हैज़ प्रीच्ड कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ स्टेट. इट हैज़ ट्राइड टू रिकॉग्नाइज and reorganize society apart from the citizens as individuals. See, the theory has preached corporate character of state. अभी theory में क्या बोला है अपन ने, corporate character of state बोला है ना, like corporate को importance दिया है. हाँ, it has tried to recognize and reorganize society. अब यहाँ पे सोसाइटी को reorganize किया है apart from the citizen as individual. प्रॉपर्टी सोसाइटी अपन ने क्या है, वापस पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे हर किसी को एक इम्पोर्टेंस दिया है, हर किसी को इम्पोर्टेंट बोला है. देन नेक्स्ट इज द थियरी ऑफ नेशनल स्टेट. रोसेलू ऑल्सो इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द थियरी ऑफ नेशन स्टेट. सी, रोसेलू क्या है यहाँ पे, रोसेलू ऑल्सो इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द थियरी ऑफ नेशन स्टेट. रोसेलू ने क्या किया, ये थियरी ऑफ नेशन स्टेट इसको अच्छे से प्रमोट किया है. अकॉर्डिंग टू डनिंग, थ्रू दिस कंसेप्ट अ वे वॉज ओपन्ड बाय विच द यूनिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिकेम नेसेसरी पर सपोजिशन ऑफ द साइंटिफिक पॉलिटिक्स. सी, थ्रू दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से क्या हो गया, एक नया वे ओपन हुआ है, जहाँ पे अपन यूनिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ पॉपुलेशन बिकेम नेसेसरी per supposition of the scientific politics. Rousseau thus contributed largely to promote the theory of national state. See, Rousseau has played a very important role to promote the theory of national state. मतलब नेशनल स्टेट की थ्योरी को प्रमोट करने के लिए रोसेलू का एक बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे. Then it is thus difficult to agree with the criticism that Rousseau would have not done more justice to the subject had he not inculcated the theory of general will. अभी ये बात मुश्किल है एग्री करने के लिए कि बाबा रोसेलू ने क्या हुआ, अगर उसने ये काम अच्छे से जस्टिस दिया होता तो क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल विल को आज इम्पोर्टेंस मिलता, उसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस रहता. टू कंक्लूड विथ Postacue, the general will seems to be, in the last resort, the ineradicable impulses of an intelligent being to a good extended beyond itself, in so far as that impulses takes the form of common good. See, the general will क्या है, seems to be. ये general will को क्या बोला है, ये सबसे लास्ट यूज़ करेंगे. क्यों, यहाँ पे क्या है, अच्छी बातें भी है, बट क्या है, कॉमन गुड्स, इन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अपने को सबका अच्छा सोच के आगे बढ़ना है. द जनरल विल सीम्स टू बी इन द लास्ट रिसोर्ट द इनक्रेडिबल इम्पल्स ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग टू अ गुड एक्सटेंट बियॉन्ड इटसेल्फ, इन सो फार एज दैट इम्पल्सेस टेक द फॉर्म ऑफ कॉमन गुड. सी, अपन एक जन का गुड देखते देखते अपने को सबकी भलाई के बारे में सोचना है. टू दिस इम्पल्स मास्टर्ड and created in a degree, yet if it were extinct human life would have ceased. See, through बहुत से, अभी इसमें बहुत से अच्छे पॉइंट्स भी हैं, सब अगर देखोगे तो क्या है, ह्यूमन बीइंग का अच्छा भी हो सकता है, भला भी हो सकता है. यहाँ पे लाइक आप क्या सोचते हो उस पे है. वी हैव एंडेड अप हियर द थ्योरी ऑफ जनरल विल. इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडी द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt,
you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.